السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین چیزوں میں کنجوسی کرتے ہیں. تین چیزوں میں سلام کا جواب دینے میں کنجوسی، سورہ فاتحہ کے بعد آمین بولنے میں کوئی زیادہ آواز نہیں آتی. گناہ معاف ہونا نہیں ہونا. ہماری آمین جا کر اگر فرشتوں کی آمین سے ملے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا. اور دعا کرتے وقت بھی آمین نہیں بولتے. دعا کرتے وقت بھی آمین نہیں بولتے. اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ تو سارے کیا کرنا؟ خاموش کھڑے جانا. ربنا ولک الحمد. گناہ معاف کرتا اللہ تبارک و تعالی. ایک دونوں بولتے بڑے زور سے تچ. ایسا نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نیکی لکھا ہے. میرے خیال سے سب کے بینک بیلنس بھر کو ہے، شاید سب کی نیکیاں بہت زیادہ ہو گئیں. اللہ میرے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہے، میں کیا کر دوں؟ نیکیاں کمانے کا بہت بڑا موقع ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد بن عبد اللہ ومن والہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ دعا اس لیے پڑھایا انشاءاللہ اسی دعا کے متعلق کچھ باتیں، کیونکہ بڑی پیاری بہترین دعا ہے. اللہم انکا، اے اللہ یقیناً تو ہی عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرنے والا ہے. فاعف عنی یا فاعف عنا، اللہ تو مجھے کیا ہے؟ معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. آج صبح میں 5 منٹ میں توبہ و استغفار کے بارے میں کہا تھا، اسی کو انشاءاللہ کچھ باتیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے جو نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اے نبی، خاص کر نبی سے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرو، آپ زیادہ سے زیادہ معافی طلب کرو، آپ زیادہ سے زیادہ دعا کرو، استغفار کرو. ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان. صرف مہربان نہیں، بڑا مہربان ہے. یہ صرف نبی سے کہا. اس کے بعد نبی سے کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اب ساری کائنات کے سارے مومنین، سارے مسلمان، سارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے، امت محمدیہ سے اور سارے مومنوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے مومنوں، سارے کے سارے مومنوں سے کہا وَتُوبُوا، تم کیا کرو؟ توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی سے گناہ کی بخشش طلب کرو. ایھا المؤمنون، اے مومنون، لعلکم تفلحون، اگر آپ توبہ کرو گے، اگر آپ معافی مانگو گے، اگر آپ استغفار کرو گے، لعلکم تفلحون، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا. کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرے گا. ایسے ویسے نہیں. دیکھیے، یقیناً ہم لوگ انسان ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں. منٹ منٹ پر ہم سے گناہ ہوتا ہے، سیکنڈ سیکنڈ پر ہم سے گناہ ہوتا ہے. اب گناہ ہونا معمولی بات ہے، گناہ ہوتا ہی ہے انسان سے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن مجید کے اندر انسانوں کا، مومنوں کا تعارف ایسے کرایا کہ میرے بندے گناہ مت کرو. نہیں، میرے گناہ کرنے والے بندوں، جب آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ فوراً اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو. آج میں بتایا اللہ تبارک و تعالی توبہ کا طریقہ، توبے کا سلیقہ، کیسے توبہ کرنا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے آسمان پر یہ سلیقہ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے. معلوم ہے کس کو؟ حضرت جی بولو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. انسان یقیناً گناہوں کا پتلا ہے. گناہ کرنے کے بعد اگر انسان خاموش ہو جاتا ہے, چپ بیٹھ جاتا ہے, تو اس کا انجام بہت برا ہے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کو جانتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا, کشتی بنائے. کشتی بنانے کے بعد ہر باپ کو کیا تڑپ رہتی؟ میرے بچے اچھے بننا, میرے بچے سدھر جانا, میرے بچے کامیاب ہو جانا. ہر ماں باپ کو یہ تڑپ رہتی, فکر رہتی, اور رہنا بھی چاہیے. اب حضرت نوح علیہ السلام کیا کرے, سارے قوم والوں کو بلائے, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. ان میں سے نہیں آنے والوں میں سے کون تھا؟ ان کا بیٹا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے, اے اللہ میرا بیٹا بھی ہے, اللہ میرے گھر والوں میں سے ہے. اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے, اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو بخش دے, اور میرے گھر والوں میں سے بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا, اے نوح تمہارا وہ بیٹا ہے میں مانتا ہوں, لیکن تمہارا بیٹا اب تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. تمہارا بیٹا گنہگار ہے, کیونکہ کشتی میں اب طوفان آنے والا ہے, کشتی ٹوٹ جانے والی ہے, کشتی چلے جانے والی ہے. اس کے بعد طوفان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طوفان سے اب کیا ہے, ساری قوم غرق ہونے والی ہے, تباہ اور برباد ہونے والی ہے. اب باپ کی خواہش تھی, اے اللہ میرے بیٹے کو بچا دے. اللہ نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اب حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام معافی مانگی. کیا؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا, مجھے معلوم نہیں تھا. ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی. اب تو اگر مجھے معاف نہیں کرے گا, وترحمنی, تو اگر میرے اوپر رحم نہیں کرے گا, لنکونن من الخاسرین. اے اللہ میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاتا ہوں, اللہ معاف کر دے اللہ تو مجھے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا, نہیں قبول کیا؟ جی بولو. جی یقیناً قبول کیا. جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد آرام کے ساتھ بیٹھنا نہیں. معلوم ہو گیا میں کیا کروں, میں جو کام کر رہا ہوں گناہ کا کام ہے, ہاتھ اٹھائیے, پوچھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ معاف کرتا. وہ چھوڑیے, آئیے حضرت داؤد کو یاد کیجئے. وہ داؤد جو ہاتھ میں اگر لوہا پکڑتے تو لوہا کیا ہو جاتا تھا؟ لوہا پگھل جاتا تھا, موم ہو جاتا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش دیکھیں گے, آزمائش میں مبتلا کریں گے. داؤد کو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجا. 2 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد کے پاس بھیجا. اب 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے, 2 گروہ کی شکل میں آئے, آ کر بولے ان ھذا اخی, اے داؤد علیہ السلام یہ میرا بھائی ہے, لہو 99 نعجہ, اس کے پاس 90 پر 9 بکریاں ہیں, ولی نعجۃ واحدہ, اور 1 بکری مجھے دیا ہے, آپ جلدی فیصلہ کرو. اب حضرت داؤد علیہ السلام بولے 1 بکری بھی تم اس کو دے دو, کیونکہ تم کیا ہے اس پر ظلم کیے ہو. اب یہ سننا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا. کیوں؟ 2 طرف جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے 2 طرف سننا نا, ایک طرف سنے, جلد بازی میں فیصلہ کر دیے, چھوڑ دیے. وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. دیکھیے انبیاء بھی کیسے تھے, جیسے ہی گناہ ہو گیا, معلوم ہو گیا کہ میں گناہ کر دیا, میرے سے گناہ سرزد ہو گیا, میں نے غلطی کی, چپ بیٹھتے نہیں تھے. بعد میں موقع ملے خود توبہ کر لیں گے, اگلے رمضان میں کریں گے, یا نہیں تو جمعہ کے دن جب نماز کو آتے ہیں جب کریں گے, نہیں تو مغرب میں آتے ہیں جب اللہ سے دعا کریں گے. نہیں, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا. بعد میں بتایا کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ غلط تھا. ان کو معلوم ہو گیا میں جذبات میں آ کر جلد بازی میں کیا کیا, جلد بازی میں نے کیا کیا, غلط فیصلہ لے لیا. غلط فیصلہ لینے کے بعد خاموش نہیں تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیے. اب آئیے, جب جو بھی بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. اس کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام سے نوازتا ہے, اس کو انعام سے نوازتا ہے. کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ, آج تک ویسا بادشاہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت دی تھی ان کو کہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے. جنات کا کنٹرول حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. کیسے؟ رب اغفر لی. کیا بولے؟ رب اغفر لی, اے اللہ تو مجھے بخش دے, معاف کر دے. وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, ایسی بادشاہت تو مجھے عطا کر, ایسا بادشاہ بنا قیامت کے دن تک کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں آنا, ویسی بادشاہت تو مجھے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیا کہ نہیں دیا؟ بادشاہ بنایا نہیں بنایا؟ سارے جنات کا کنٹرول حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا. معلوم کیا ہوا؟ ایک دعا میں پڑھا. کیا پڑھا؟ رب اغفر لی. گزشتہ تاخرات میں بولا تھا جب بھی دعا کرے تو کیا کرنا؟ جی ربی ربی ربنا, اے میرے رب. ربی یہاں پر پہلے کیا کرے وہ بھی بولا تھا. اگر دعا کرتے وقت سب سے پہلے کیا پوچھنا؟ آخرت ہے نہیں, آخرت پوچھنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے؟ پہلے گناہ کو معاف کرائے نہیں کرائے. رب اغفر لی, اے اللہ تو میرے گناہ کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. اس کے بعد دوسری چیز پوچھے, دنیا پوچھے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیا, دنیا بھی عطا کیا. عطا کیا نہیں عطا کیا؟ دیا نہیں دیا؟ جب بھی ہم بھی دعا کریں گے تو پہلے معافی مانگیں گے, استغفار طلب کریں گے, آخرت پوچھیں گے, ہماری جو چیزیں ہیں اس کے بعد اللہ سے پوچھیں گے, جو مانگنا ہے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور 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 دے گا. حضرت یونس علیہ السلام, دیکھیے ایک سوال ہے. ایک ایسی قوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا, عذاب نازل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا, لیکن اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں کیا. پورے قوموں میں قیامت تک اب تک ایک قوم ایسی ہے, اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا ارادہ کر کے سزا نہیں دیا. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کیا. کون سی قوم؟ جی بولو, بولیے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیے, لوگوں کو بلائے دعوت کی طرف, لوگ نہیں آئے. حضرت یونس علیہ السلام کیا کیے؟ ناراض ہو کر, قوم والوں سے ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر چلے گئے. جانے کے بعد کشتی میں بیٹھے, کیا ہو گیا معلوم نا؟ بولنا آگے. جی بولیے. معلوم نا؟ کشتی ہچکولے کھانے لگی, کشتی ہلنے لگی, تو لوگ سمجھ گئے کہ کوئی ایک گنہگار ہے, کوئی گناہ کر کے آیا ہے. نام لکھ کر ڈالے, نام لکھ کر چٹھی اچھالنے کے بعد کس کا نام آیا؟ بولیے. حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. ان کو پھینک دیے. اب یہاں پر رکیں گے تھوڑی دیر. اب وہ قوم والے جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر چلے گئے نا, قوم والے ناراض ہو گئے. معلوم ہو گیا بھئی ہم بہت گناہ کا کام کیے, ہم جو کام کیے غلط کام کیے, ہم نے ہماری نبی کی بات نہیں مانی. پورے قوم والے مل کر استغفار کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ گناہ معاف, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگنے لگے. اے اللہ ہم نے جو بھی کیا غلط کیا, اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو کیا کر دیا؟ رکا لیا. سبحان اللہ. اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ جو قوم گناہ کرتی اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نازل کرتا؟ عذابات نازل کرتا. بولتے نہیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا, یا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا, بارش نہیں ہو رہی, فلاں نہیں ہو رہا, مسلمان بہت پریشان حال ہیں, بہت زیادہ ستایا جا رہے ہیں. آپ بیٹھ کر استغفار کیجئے, آپ بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو اگر پورا نہیں کیا تو, کیونکہ اللہ صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دنیا کے اندر جو بھی پریشانی آپ کو آ رہی ہے, جو بھی مصیبت آپ کو آ رہی ہے, جو بھی آپ کو غم پریشانی لاحق ہو رہی ہے,
फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे कामों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको क्या किया, अजाब में मुब्तला किया। मालूम हो गया ना। तो अगर गुनाह करके फौरन माफी मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अजाब नाजिल नहीं करेगा। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, अब उसके बाद हजरत यूनुस को मच्छी पेट में ले ली, दुआ करते रहे। क्या दुआ थी, सबको मालूम है मेरे ख्याल से, बोलो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। जितने दिन दुआ किए, आखिरकार अल्लाह बाद में कहता है फस्तजबना लहू ज़ालिक, हमने यूनुस की दुआ को कबूल की, उनको माफ कर दिया। उसके बाद कहता है ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अल्लाहु अकबर, यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर बहुत गौर करना। अल्लाह कहता अगर यूनुस मछली के पेट में रहकर भी इस्तिग़फ़ार नहीं करता, माफी नहीं मांगता, ललबिसा फी बत्नी इला यौमि युबअसून, मैं क्या करता था, यूनुस को क़यामत के दिन तक भी मछली के पेट के अंदर ही रखता था। अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन तक भी मैं यूनुस को क्या करता था, मछली के पेट में रखता था। क्या मालूम हुआ, एक बार अल्लाह तबारक व तआला अजाब नाजिल किया, सजा दिया, घर के अंदर परेशानियां नाजिल किया। उसके बाद अगर मैं और आप इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मौत तक हमको सजा देगा। हमारी मौत तक अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही नाराज करके रखेगा। हमारी तिजारत में नुकसान ही नुकसान, हमारे घर में लड़ाइयां, झगड़े ही झगड़े, हमारी परेशानियां और ज्यादा बढ़ते के बढ़ते जाते हैं। जब भी देखो, अगर कहीं घर में नुकसान हो रहा है, कहीं घर में परेशानी लाहक हो रही है, फौरन तौबा करो, अल्लाह मैं कोई गुनाह किया हूं, मेरे गुनाह को तू माफ कर दे, क्योंकि मेरे घर के अंदर परेशानी आ रही है। देखिए, माफी मांगने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमारी माफी को कबूल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमको माफ कर देगा। मछली के पेट के अंदर रहने के बाद भी अल्लाह कह रहा है कि अगर यूनुस मछली के पेट में भी रहकर दुआ अगर नहीं करता, माफी नहीं मांगता, तौबा नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, तो मैं यूनुस को कब तक रखता था मछली के पेट में, बोलो, कब तक, क़यामत के दिन तक। कैसा जी, कितनी परेशानी। मछली के पेट में तारीकी में खाना खिलाने वाला नहीं, पानी पिलाने वाला नहीं, मदद करने वाला नहीं, कोई भी बात करने वाला नहीं, बात सुनने वाला नहीं, सिर्फ एक ही जात बात सुनने वाली है। कौन सी जात जी, कौन सी जात, जरा बोलो जी जोर से। अल्लाह तबारक व तआला की जात है जो हमारी बात को सुनने वाली है। हमारी मुंह से निकलने वाले एक एक लफ्ज, एक एक कलिमा, एक एक टुकड़ा, एक एक लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है। देखिए, मेरे और आपके आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठकर एक दुआ करते थे, 100 बार पढ़ते थे। अब भी मेरे साथ दुआ पढ़ो, बड़ी बेहतरीन दुआ है, बड़ी बेहतरीन दुआ है। नबी हैं, इमामुल अंबिया है नहीं, पूरे नबियों के इमाम। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नत को फिक्स कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नत को कंफर्म कर दिया। उसके बाद भी एक दिन में 100 मर्तबा दुआ पढ़ना, एक दिन में बार बार अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करना, इससे ये मालूम होता है कि हम कितने मर्तबा करते, एक बार तो करते कि नहीं करते, कि नहीं मालूम। अब इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई टेका लेकर बैठे हैं, कोई क्या है, किसी को नींद आ रही है, कोई आराम बैठे हैं। जब ये इज्तिमा खत्म होता, जब ये मजलिस खत्म होती, जब भी उठते अबा पैर में दर्द हो रहा, अबा कमर में दर्द हो रहा बोलते, लेकिन कोई भी अपनी जबान से अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोलते, कोई भी अपनी जबान से अस्तगफिरुल्लाह हरगिज़ नहीं बोलते। अब्बा कमर पकड़ ली रे, अब्बा पैर में पकड़ लिया बोलते, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह कोई भी अपनी जबान से नहीं बोलते। यही तो मौका है अस्तगफिरुल्लाह बोलने का, यही तो अल्लाह तबारक व तआला मौका दिया है अस्तगफिरुल्लाह बोलने का। आइए दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ते थे, रब्बिग़फिरली, जी जोर से, रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क्या माना रब्बि, देखिए यहां भी क्या अल्लाह के नबी कैसे दुआ किए, रब्बिग़फिरली, है नहीं। तो दुआ करते हो कभी भी रब्बी बोलिए, मांगिए अल्लाह तबारक व तआला से, उसकी रुबूबियत को उसके सामने रखिए। रब्बी यानी
तू ही सारी चीजों का खालिक, तू ही है पैदा करने वाला, मालिक भी तू ही है, हर चीज तेरे हाथ में है, सबका मालिक, सबका खालिक, सबका पैदा करने वाला और पालने वाला तू ही है। इसका मतलब है रब्बी गफिर ली, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, वतुब अलैया, और हमारी तौबा को क्या कर, कबूल कर, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू ही तौबा को कबूल करने वाला और गफूरुर रहीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। जब भी दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी सारी चीजें याद दिलाओ, तू ही खिलाने वाला है। अब यहां पर अल्लाह के नबी क्या कहे, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू ही बख्शने वाला है, तू ही माफ करने वाला है। इसका मतलब क्या, अल्लाह के अलावा कोई और माफ करने वाला नहीं है, कोई और हमारी दुआ को कबूल करने वाला नहीं है, कोई और हमारी बात सुनने वाला नहीं है। जब नबी इतने मर्तबा दुआ करते थे, जब नबी इतने मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते थे, मांगते थे, माफी मांगते थे, तो फिर हम कहां के। आइए एक वाकया सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी था, पूरी जिंदगी जब तक जिया तब तक गुनाह पर गुनाह किया, उसको मरते वक्त भी नेकी का एहसास नहीं हुआ। जब मरता था, आखिर में जब उसको मालूम हो गया कि मैं बहुत ज्यादा गुनाह किया हूं दुनिया के अंदर, क्या किया, उसके बच्चों को बुलाया, उसके बेटों को बुलाया, बुलाकर बोला, मैं मरने के बाद एक काम करो, मेरे मुर्दे को मरने के बाद ले जाकर मुझे जलाओ, मुझे क्या करो, जलाओ। जलाने के बाद जो राख आती ना, राख, उस राख को, आधी राख को जमीन पर डाल दो, आधी राख को क्या करो, समंदर में फेंक दो। आधी राख को कहां पर फेंकना, जी बोलो, जमीन पर, और आधी राख को कहां पर डालना, समंदर में डाल दो। बच्चे डाल दिए, बाप की बात मान लिए, बच्चे ले गए, डाल दिए। उसके बाद हुआ अगर वो आदमी कहा अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है तो अल्लाह मुझे माफ करता, वरना छोड़ देता। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहला भेजा कि जाओ उस राख को जमा करो, जमीन की राख को लाओ, और समंदर में से जो राख उसके बच्चे फेंके थे उस राख को लाओ और दोनों जगह जमा करो। जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को दोबारा जिंदा करता है, जिंदा करके उसको पूछता है, लिमाजा फअलता, तू अपने बच्चों को ऐसा कहीं को हुक्म दिया, भाई ऐसा हुक्म तू अपने बच्चों को क्यों दिया? तो बंदा कहता है, ऐ अल्लाह मेरे पास दूसरा चारा नहीं था, इतना गुनाह किया था, इतने गुनाह किया था, ऐसे बड़े बड़े बदकारियां किया था, अब मेरे पास तेरे अलावा कोई भी माफी मांगने का या माफ करने का चारा नहीं था, उसके वास्ते मेरी शर्म की वजह से अल्लाह ने ऐसा किया। अल्लाह तबारक व तआला की जात देखिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की जात भी कितनी प्यारी जात है। अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ करके अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करता है। एहसास गुनाह करने के बाद आदमी शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा होकर अपने बच्चों को बुला के, बच्चों मेरे मुर्दे को मरने के बाद, जलाने के बाद राख को अलग अलग कर दो। बच्चे कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अदा पसंद आ गई, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। इसीलिए कभी भी जब हम गुनाह करते हैं तो नाराज नहीं होना। अब मैं दुआ करे तो अल्लाह ताला मुझे माफ करता कि नहीं की, मेरी दुआ कबूल करता कि नहीं की, अब मैं उतना बड़ा गुनाह किया, अब अल्लाह के सामने मैं कैसा करना, ये नहीं। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए तौबे का दरवाजा खोल कर रखा है। कब तक? जब तक मौत का फरिश्ता आकर हमारे गले तक, हमारी रूह को हमारे गले तक, गरगरा बोलते हैं उसको, अल्लाह के नबी ने कहा, लम यमुतुल अब्दु मा लम युगरगिर, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक मेरे और आपके लिए तौबे का दरवाजा खोल कर रखा है जब तक मौत का फरिश्ता हमारी हलक तक आकर हमारी रूह को कब्ज़ नहीं कर लेता। उस वक्त तक यानी अगर कोई सकरात में है तब भी अगर माफी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाता है,
उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है? माफ करता है। अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है? माफ करता है। इतनी बड़ी रहम व करम वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात है। कोई और बादशाह के हाथ में बादशाहत नहीं है, किसी और के हाथ में इतनी ताकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका रब, मेरा और आपका मालिक ही ये कर सकता है कि मुझे और आपको क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। मालूम क्या हुआ? मालूम क्या हुआ? गुनाह करने के बाद क्या करना? फौरन तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ तौबा नहीं कबूल करता। 4 खुशखबरियां एक आयत के अंदर, सूरतुल मुम्तहिना के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, असा रब्बुहु अन युकफ्फिरा अन्हु मिन सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह तबारक व तआला पहली खुशखबरी ये, जो तौबा करता है, युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, उनके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है? मिटा देता है। मिटाकर छोड़ नहीं देता, सिर्फ मिटाने देता गुनाहों को। मिटाने के बाद वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत के अंदर दाखिल करके ऐसा मकाम अता करेगा कि ऐसी जगह पर उसको रखेगा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके पैर के नीचों से अल्लाह तबारक व तआला नहरों को, पानी की नहरें छोड़ देगा। आदमी आराम से बैठेगा। आजकल जो दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? घर ऐसी जगह रहना, समंदर के किनारे, नदी के किनारे, या अपने घरों के अंदर कोई स्विमिंग पूल बनाता है, या नदी के किनारे कोई घर बनाकर बड़ा नाज करता है। वो सिर्फ दुनिया तक ही, वो सिर्फ दुनिया तक ही। जो बंदा माफी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन, कब बोलिए? कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे मकाम पर फाइज करेगा कि अल्लाह उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। तस्नी और है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के आगे और पीछे, यानी दाएं और बाएं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में अल्लाह तबारक व तआला नूर ही नूर अता करेगा, रोशनी ही रोशनी। किस वजह से जी? किस वजह से? तौबा करने की वजह से, माफी मांगने की वजह से, गुनाहों से गिड़गिड़ाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसी खुशखबरियां देता है। ये खुशखबरियां होना नहीं होना, होना नहीं होना। आइए और आगे बढ़ते हैं। और बड़ी खुशखबरी, बड़ा इनाम ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुरान के अंदर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ नूह तुम तुम्हारे कौम वाले से जाकर कह दो, इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम अपने रब्बुल आलमीन से माफी मांगो, गुनाहों की बख्शिश तलब करो। अगर तलब करे तो अल्लाह क्या करेगा? इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। पहला इनाम, जिस गांव के अंदर बारिश नहीं हो रही है, जो भी लोग खेती बाड़ी करने में क्या है बहुत परेशानी उठाते हैं, क्या भाई बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो ऐसे में क्या करो? फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, तुम क्या करो? अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिगफार तलब करो। सुना नहीं जी? सो तो हमारी हिम्मत पस्त हो जाती। सुना नहीं, अच्छी बात नहीं, उठिए जी। अल्लाह तबारक व तआला युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, पहला इनाम क्या करेगा अल्लाह तबारक व तआला? आसमान से, जी बोलो, बारिश नाजिल करेगा। क्या नाजिल करेगा? आसमान से बारिश नाजिल करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, दूसरा इनाम, अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर कोई औलाद को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, उसके खानदान वाले उसको ताने पर ताने दे रहे हैं कि शादियों को इतने साल वो बच्चे नहीं हुए, शादियों को इतने साल वो बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। वो आदमी परेशान होकर फलां के पास, डॉक्टरों के पास, बाबाओं के पास, फलां का चक्कर मार मार के इंसान परेशान हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, इस्तिगफार करेंगे, वयुमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह तबारक व तआला माल देकर भी, माल भी देता है। क्या देता है? माल देकर मालदार बनाता है। इस्तिगफार करने की वजह से, तौबा करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमको क्या करता है? मालदार बनाता है। कैसा मालदार? 2 तरह के मालदार है दुनिया के अंदर। हलाल माल देकर अल्लाह तबारक व तआला हमको मालदार बनाता है। वैसे तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग हराम कमाई कमाने वाले हैं, हराम कमाई का रख कर क्या है बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर मालदार अपने आप को समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से अगर हम इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला माल देकर मदद करता है। बिअमवालिन व बनीन,
सुबहान अल्लाह, औलाद भी देता है, जिसको औलाद नहीं है उसको औलाद देता है, और जिसकी औलाद बिगड़ी हुई है, यहां पर गौर करना है, जिसकी औलाद बिगड़ी हुई है, दुआ करते हैं अल्लाह मेरी औलाद को सुधार दे। जब पहले हम हमारा इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगेंगे, अल्लाह तू पहले मुझे बख्श दे, अल्लाह तू पहले मुझे बख्श दे, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा, हमको भी बख्शेगा और हमारी औलाद को भी सीधे रास्ते पर लाएगा। दलील क्या है? दलील क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं। इससे पहले दर्स में, रमजान से पहले मैं कहा था, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी दुआएं हैं, आधे से ज्यादा दुआएं किसके हैं? हजरत बोलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह तू मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, उसके बाद किसको? मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे, वलिल मुमिनीन, किसको? दुनिया के सारे मोमिनों को तू क्या है? माफ कर दे। मालूम हो नहीं, जब ये दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी बख्शिश करेगा, माल भी देगा, बारिश भी नाजिल करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला औलाद नहीं है तो औलाद देगा। जिसकी औलाद बिगड़ी हुई है दुआ करे तो इस इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बिगड़ी हुई औलाद को सीधे रास्ते पर लाएगा। सुभान अल्लाह। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा, अगर आपके पास बागात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस्तिग़फ़ार की वजह से बागात का अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए इंतजाम करेगा। कोई भी जात ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर, है कोई जात? कोई जात है? कोई भी जात नहीं है। इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आंसुओं को नीचे गिराएंगे, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमारी माफी को कबूल करेगा, हमारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा। और बहुत सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला, जो बंदा माफी मांगने की नीयत रखेगा, तौबा करने की नीयत रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करेगा, उसकी तौबा को। एक वाकया बहुत मशहूर है, बोलने की जरूरत नहीं, शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, बनु इसराइल का एक आदमी था, उसका जिक्र करते हैं। कौन? 90 पर 9 जो कत्ल किया था, मालूम ना वाकया, सुने होंगे बचपन से। जो आदमी 90 पर 9 कत्ल करने के बाद भी उसको बाद में एहसास हो गया। आइए वाकया सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बनु इसराइल के अंदर एक आदमी था, उसका काम क्या? लोगों को कत्ल करना, कातिल था, लोगों को कत्ल करना। करते करते बाद में उसको मालूम हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूं, ये जो काम मेरे से हो रहा है, बहुत गलत काम कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं गलत काम कर रहा हूं। गया एक आलिम के पास, एक आदमी के पास गया, जाकर बोला मैं 90 पर 9 मर्डर किया हूं, अब क्या मेरी तौबा कबूल होती कि नहीं होती? वो आदमी बड़ा जज्बाती था, तेरी तौबा कबूल नहीं होती, चल जा ऐसे। उस गुस्से में आकर उसको भी कत्ल कर दिया। बाद में एक आदमी बोला कि एक गांव में बहुत बड़ा आलिम है, जाओ उसके पास, वो तेरे लिए कुछ ना कुछ करता है। वो आलिम मतलब कौन? पादरी था। उसके पास गया, जाकर बोला मैं तौबा करना चाहता हूं, मेरे से 100 मर्डर हो गए हैं, 100 कत्ल हो गए, मैं क्या करूं, जरा रास्ता बताओ, मैं बहुत परेशान हूं। उसने कहा ठीक है भाई, अल्लाह तबारक व तआला के पास माफी का दरवाजा खुला है, अल्लाह तबारक व तआला के पास तौबे का दरवाजा खुला है, अल्लाह तबारक व तआला ही तेरी तौबा कबूल कर सकता है, उसके अलावा कोई भी तेरी तौबा कबूल नहीं कर सकता। क्या किया? एक शर्त के साथ, तू जिस गांव के अंदर है वो गांव को छोड़कर चला जाना होगा तुझे। तेरे गांव के अंदर क्या है? डाकू हैं, तेरे गांव के अंदर बड़े बड़े फितना मचाने वाले बहुत बड़े बड़े डाकुओं की जमात तेरे गांव के अंदर है, तू उसको छोड़कर निकल जाना होगा। ठीक है, निकल गया, भागता चला गया, दरमियान में उसकी मौत हो गई। फरिश्ते ने आकर उसके रूह को कब्ज कर लेकर चला गया। अब यहां पर 2 फरिश्ते आए, मालूम है सबको, 2 फरिश्ते आए, एक फरिश्ता जन्नत से, एक फरिश्ता जहन्नम से। दोनों आपस में झगड़ लिए कि नहीं, ये बड़ा, वो जहन्नम का फरिश्ता कहता है कि ये 6 आदमियों को कत्ल किया, बहुत गंदा इंसान था, बेरहम इंसान था, इसकी सजा जहन्नम ही, नहीं, मैं उसको जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नती फरिश्ता कहता है नहीं, ये आदमी, उसके अंदर एहसास हो गया था, उसके एहसास की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहला भेजा है कि उसको तू काम पर दाखिल कर, ले जाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर।
सिर्फ एहसास होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहां पर दाखिल करता? एहसास होने के बाद क्या करना? तौबा करना, माफी मांगना अल्लाह तबारक व तआला से, गुरूर में मुब्तला नहीं रहना जी। ये आजकल के लोगों में क्या है, बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, तकब्बुर, गुरूर, घमंड लोगों में आ गया है। जा मैं कहीं को तौबा करना, जा मैं कहीं को तौबा करना। तो ऐसा बोलने वालों का अंजाम दुनिया के अंदर हुआ नहीं हुआ? फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला क्या किया? आजा जन्नत में बोलकर जन्नत में दाखिल किया, नहीं क्या किया? बोलो, नींदारी खत्म कर दो, समंदर में गर्क कर कर तबाह और बर्बाद कर दिया नहीं कर दिया? और कारून मस्ती किया, नहीं मेरी इल्म की वजह से मैं कमाया, अल्लाह तबारक व तआला नहीं दिया, मेरे इल्म की वजह से मैं पैसा कमाया। बोला फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, पूरे माल को ले जाकर अल्लाह तबारक व तआला जमीन के अंदर धंसा दिया। इसीलिए गुरूर और घमंड और तकब्बुर नहीं रहना। अगर तकब्बुर करना रहता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? बादशाह थे जी, बादशाह, सारे जिन्नात को अपने कंट्रोल में रखे थे, सारे जिन्नात को कंट्रोल में रखे थे। वो आदमी भी क्या कर सकता था? तकब्बुर कर सकता था, गुरूर कर सकता था, घमंड कर सकता था, लेकिन क्या किया? रब्बी इग़फिरली बोले। क्या बोले? रब्बी इग़फिरली, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। बोले कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद भी घमंड कर सकते थे, नहीं कर सकते? ए मेरे पास क्या है, हाथ में मैं लोहा पकड़ा तो लोहा क्या हो जाता? पिघल जाता। अब उन्होंने घमंड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? किए घमंड, गुरूर किए। माफी मांगे अल्लाह तबारक व तआला से। जो माल, जो दौलत मेरी और आपके पास है, 4 दिन का, 2 दिन का भी नहीं, बोल नहीं सकते कि रात तक रहता कि नहीं रहता, है कि नहीं? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जो मौका दिया है उस मौके को गनीमत जाने और खूब अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार तलब करें, दुआएं करें हमारे लिए। अब देखिए दुआ में हजरत इब्राहिम की बताया, पहले हमारे लिए करें, उसके बाद माँ बाप के लिए, सारे मोमिनीन के लिए। 3 जुमलों में बात खत्म हो गई। रब्बना इग़फिरली, बोलिए रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, है नहीं? हमारे वास्ते भी दुआ हो गई, माँ बाप के लिए दुआ हो गई, माँ बाप में सब आ गए, बच्चे औलाद सब आ गए। उसके बाद वलिल मुमिनीन, दुनिया के अंदर पाए जाने वाले सारे मोमिनीन के लिए, सारे मोमिनीन के लिए हम दुआ कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी दुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला से पहले आखिरत तलब करो, उसके बाद जो मांगना है मांगो, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला देगा, अल्लाह तबारक व तआला नवाजेगा, अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। उसकी जात, अल्लाह तबारक व तआला की जात में रत्ती बराबर भी कमी होने वाली नहीं है। इसीलिए हमेशा दुआ करो। बस 3 दिन या 4 दिन बचे हुए हैं, अगर वो आखिरी दिन निकाल दिए तो आखिरी दिन ईद की तैयारी में छोड़ दिए तो 3 दिन नहीं, क्या दिन? आज का दिन छोड़ दो, 3 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए हैं। अब अल्लाह के वास्ते और एक मर्तबा कह रहा हूं, 3 बजने के बाद जो आखिरी तरावी होती है उसके बाद मत सो, उसके बाद सोने की कोशिश ना करो, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश करो। अब तक अच्छे हैं, आज तो कोई भी नहीं सोते मेरे ख्याल से। अब आने वाली रात में शायद सोए तो सोए, क्योंकि आज सबकी बड़ी रात है, क्योंकि आज नहीं बोलने की जरूरत नहीं आज, लेकिन बोलना मेरा फर्ज है। हरगिज़ सोने की कोशिश ना करो। 2 बजे तक अच्छा रहते, अचानक आते आते आंख बंद हो जाती, बैटरी डाउन हो जाती, सो जाते। ऐसा ना करें, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला को जो पूछना है अल्लाह तबारक व तआला से पूछने की कोशिश करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला देगा। और खास कर सबके लिए दुआ करें। वो बच्चा बेचारा अपना पैर से माजूर है, सब गांव वाले होने की वजह से, जमात वाले होने की वजह से सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे के हक में दुआ करें। क्या नाम बच्चे का? मोहम्मद सादुल्लाह। उनके अब्बा ने बोले मुझे दुआ करने की बात, मैं अपने से बोल रहा हूं, उसके हक में दुआ करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हर नमाज में दुआ करना बड़ी देखिए कई लोग हैं जी, कुछ बच्चे बाहर हैं, कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो बच्चा बेचारा नमाज खड़कर पढ़ता है। कई दिन से मैं देख रहा हूं, जब से मैं 8 महीने में आकर मेरे हो गए यहाँ पर, लेकिन रमजान में बच्चे पहले से ख्वाहिश है कुरान पढ़ने की, मदरसे को आने की। रमजान में जब तक वो बच्चा गांव में था यहाँ पर आया, तो अब उस बच्चे के हक में दुआ करना कि नहीं करना? अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को सेहत शफाए आजिला और कामिला अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी दवाएं उस बच्चे को दी जा रही हैं उसके अंदर असर अता फरमा। जिस तरह का भी ट्रीटमेंट अल्लाह उस बच्चे को किया जा रहा है उस ट्रीटमेंट के अंदर असर अता फरमा। इलाहुल आलमीन उस बच्चे को नजर बद से बचा। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। इस तरीके के जितने भी मुसलमान भाई बच्चे हैं
अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, उन तमाम को शफाए आजिला और कामिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम की इबादतों को कबूल फरमा। अब तक हमने जितनी भी इबादतें की हैं अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह अब तक हमने जितने भी सदक़ात व खैरात किए हैं हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा। अल्लाह अब तक हमने जितनी भी लोग अब तक जितनी भी तरावी में कुरान सुना है अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग बीमार हैं उन तमाम को शफाए आजिला और कामिला अता फरमा। जितने भी लोग परेशान हाल हैं उन तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। कोई भी नहीं सोते ना इंशाअल्लाह।